Hello dear students, good morning. This is the next part of the chapter 5, the verbs. So we will continue. So here we will know that how many kinds of verbs. So firstly we will know two kinds, principal and auxiliary verbs. Two kinds, principal verb and auxiliary verbs. Principal verb, principal का एक other meaning होता है, means main, okay, head. So firstly we will know that what is the principal or main verbs. Main verb क्या होती है? These verbs can stand alone. For example, he wrote a letter, she arrived at 10 a.m., they have a big house. You can see that there is a highlight word, wrote, write, wrote, written. This is the second form of the verb write. Okay, he wrote a letter. You can see clearly that here is no other verb. कोई और verb आपको नहीं दिख रही है, only wrote है. He wrote a letter. उसने एक letter लिखा. Okay, so there is no other helping verb is available. So these are main verb. Main verb वो verb होती हैं जिनमें कोई और एक्स्ट्रा वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं होती है. इन दीज सेंटेंसेस द हाईलाइटेड वर्ब्स एक्सप्रेस अ कंप्लीट meaning. They agree with the person and number of the subject of the sentence and also shows the time of the activity. यहाँ पे आपको टाइम भी दिख रहा है एक्टिविटी का और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट भी क्लियरली दिख रहे हैं. So come to the auxiliary verbs. What are auxiliary verbs? These verbs are often used with other verbs to complete the meaning of a sentence. ये verb ऐसी होती हैं जिनमें आपको helping verb means एक other verbs की need होती है. However, they sometimes stand alone and give meaning to a sentence as a main verb. For example, the dog is barking. He is writing a letter. She will come at 10 a.m. In these sentences, the highlighted verbs do not express a complete meaning. Highlighted verbs is, will, the dog is, he is, she will. तो ये इसका complete meaning नहीं निकल रहा है. And they help the main verbs. ये auxiliary verbs होती हैं, is, will. ये main verb की help करती हैं. Who is the main verb? Barking, writing, come. The underlined verbs are main verbs like principal verbs. To complete their meaning of the sentence, auxiliary verbs are two kinds, primary auxiliary and modal auxiliary. इनको हम helping verb भी बोल सकते हैं in other way. Okay, so primary auxiliaries or modal auxiliaries. What are these? So there are primary auxiliary verb be, do, have. और इन्हीं primary auxiliary verbs का जो present tense होगा वो होगा am, is, are, do, does, has, have. And past tense was, were, did, had. So these are just three common auxiliary verbs: have, do, and be. In this section, we will take a closer look at how these common verbs will work. So have का use देखते हैं. Have is a very important verb that can stand alone in all its tenses, including has, have, having, had, and hadn't, and had not. It is usually used to denote ownership. ठीक है, ownership denote करती है means I have a pen. मेरे पास एक पेन है, तो पेन का ऑनर कौन है? I. ओके, सो हैव क्या शो कर रहा है कि आपके पास कोई चीज़ है. हैव का मीन्स आपके पास कोई चीज़ है, ऑनरशिप. आई हैव अ बैग, आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन. तो यहाँ पे हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हो रही है, एज ए मेन वर्ब यूज़ हो रहा है हैव. डू का यूज़ कैसे करते हैं? डू कैन बी यूज्ड एज एन एक्शन वर्ड that stands alone in all its tenses, and when used as an auxiliary verb, do is always paired up with another verb to create a complete verb or phrase. Do का use do, does, okay, means work करना. An example,
आई डिड पुट द गार्बेज आउट, मैंने गार्बेज को आउट कर दिया. डू इज ऑफन यूज टू फ्रॉम क्वेश्चन एंड निगेटेड क्लॉजेस. डू का यूज़ आपको पता है कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ किया जाता है, बट कभी कभी इसका यूज़ मीन्स वर्क करना के लिए आप डू का यूज़ कर सकते हैं. बी का यूज़ कहाँ करते हैं? बी और टू बी इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ब दैट हैज़ अ मल्टीट्यूड ऑफ यूजेस इन इंग्लिश. इट कैन बी यूज्ड एज एन एक्शन वर्ब दैट स्टैंड अलोन इन ऑल its tenses. When used as an auxiliary verb, be is always paired with another verb to create a complete verb. It can be singular or plural or past also. Negative sentences are formed by adding the word not. Like be का मतलब होता है कोई भी काम होना. Like है, जैसे मैं एक गर्ल हूँ, आई एम अ गर्ल, तो बी का मीन्स होता है इज, एम, आर, और पास्ट में होगा इसका मीन्स वॉज, वर. जहाँ पर भी आपको बी फॉर्म फिल करने के लिए आ रही है तो वहाँ पर आप इज, एम, आर या वॉज, वर का यूज़ फिल करेंगे. मीन्स है. ही इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पे इज एज अ मेन वर्ब आया हुआ है. ही इज़ अ गुड बॉय ऑक्सिलरी वर्ब है बट एज ए मेन वर्ब यूज़ होता है. When the verb be, do or have is followed by the principal verb, it is an auxiliary verb. And when these verbs occur alone in a sentence, they become the principal verb. अगर इन verbs का use किसी और verb के साथ होता है, जैसे he is cutting vegetables, so is वहाँ पर as a auxiliary verb आएगा और main verb हो जाएगी cutting, कट करना. ठीक है, मेन काम क्या हुआ? कट करना, वो कट कर रहा है. और अगर वहाँ पर सिर्फ इज, एम, आर आ रहा है और कोई वर्ब नहीं आ रही है तो दिस बिकम मेन वर्ब. लाइक ही इज़ अ बॉय, तो वहाँ पर और कोई आपको वर्ब नहीं दिख रहा है, ओनली इज है, तो इज होगा वहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब. सेकेंड इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. द फॉलोइंग आर द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इन इंग्लिश: कैन, मस्ट, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट, शैल, should and ought to. They are used with other verbs to express probability, determination, ability, obligation, possibility, wishes and so on. Modal auxiliaries cannot be used alone. They need a principal verb to complete the meaning. For example, Radha is late, she may be स्लीपिंग. पॉसिबिलिटी, गेस कर रहे हैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी कि राधा इज लेट, मे बी शी वॉज स्लीपिंग, शायद वो सो रही. आई शुड वॉश माई क्लॉथ्स टुडे. ऑब्लिगेशन, करना चाहिए, शुड मीन्स करना चाहिए. आई शुड वॉश माई क्लॉथ्स टुडे, आज मुझे क्लॉथ वॉश करने चाहिए. ही कैन ड्राइव अ कार. एबिलिटी, एबिलिटी शो कर रहे हैं कि उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो कार को ड्राइव कर सकता है. कैन मीन्स सकता है. ओके. कैन आई शट द डोर, क्वेश्चन पूछ रहे हैं. परमिशन, समवन इज वांटिंग परमिशन दैट कैन आई शट द डोर. सकता हूँ, क्या मैं डोर क्लोज कर सकता हूँ? यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, एडवाइस दी जा रही है. शुड मीन्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ओबे योर पेरेंट्स, पेरेंट्स की ओबे करनी चाहिए, मीन्स उनकी बात माननी चाहिए. कुड आई लीव अर्ली टुडे सर, परमिशन. राजन विल ऑलवेज बी लेट, अबाउट हैबिट्स, इनकी हैबिट्स है राजन की कि ऑलवेज लेट होते हैं. सो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स सिंगल नहीं यूज होते हैं, इन्हें किसी वर्ब की ज़रूरत होती है. एंड दिस ऑक्सिलरी वर्ब शोज लाइक पॉसिबिलिटीज़, जहाँ पर कुछ होने वाला हो, या एबिलिटी शो कर रहा हो कि हाँ वो ये काम कर सकता है. एंड प्रेडिक्शन हो, माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, आज रेन हो सकती है, कल रेन हो सकती है. माइट का यूज़ होता है थोड़ा दूर की पॉसिबिलिटी शो करने के लिए. And we also use them to do things like talk about ability, ask permission and make requests and offers also. Okay, so come to the transitive and
transitive verbs. Read the sentence. Radhika baked a cake. In this sentence, the action of the subject baked is transferred to the object cake. So what is doing? Radhika baked a cake. जो bake का action है वो किस पर depend है? Cake. क्या बेक किया जा रहा है? केक. ओके, जब आप ये वर्ब से क्वेश्चन आस्क करोगे कि बेक किया जा रहा है तो क्या बेक किया जा रहा है? दैट इज केक. सो दिस इज ट्रांसिटिव वर्ब, जिसमें वर्ब का एक्शन ऑब्जेक्ट पर होता है. जब आप वर्ब से क्वेश्चन आस्क करो कि बेक किया तो क्या बेक किया, उसका आंसर आएगा केक. सो दिस इज ट्रांसिटिव वर्ब. लाइक ही रोट, उसने क्या लिखा, आंसर आएगा लेटर. ही सैंग, व्हाट्स ही सैंग, सॉन्ग. सैंग का आंसर आया सॉन्ग. मदर पुश्ड द ट्रॉली, मदर ने क्या पुश किया, ट्रॉली. सो दीज आर ट्रांसिटिव वर्ब. In these sentences the verb, now read these sentences. They run, birds fly, it rains, the artist painted, the baby sleeps, creeper grows fast, the pigeon flew away. In these sentences the verb run, fly, rains, painted, sleep, grow and flew do not have any object. इनमें आपको ऑब्जेक्ट दिखा. आपने वर्ब से क्वेश्चन आस्क किया कि क्या रोट किया, लेटर. क्या सैंग किया, सॉन्ग. क्या मदर ने क्या पुश किया, ट्रॉली. सो जहाँ पर आपको क्वेश्चन आस्क करना पड़े दैट व्हाट, सो दे आर ट्रांसिटिव वर्ब. अब इनमें आपको कोई भी व्हाट आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं. रन, व्हाट रन, नथिंग. रन की तो कोई टाइप्स होते नहीं कि रन किया तो क्या रन किया, नहीं. फ्लाई किया तो क्या फ्लाई किया, नो. बर्ड्स तो फ्लाई करती हैं. इट रेन्स, क्या रेन हुई, रेन इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट. दे आर्टिस्ट पेंटेड, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं दैट आर्टिस्ट पेंटेड, क्या पेंट किया, पेंटिंग. दिस इज ऑल्सो सिंपल आंसर. सो नॉट टू नीड आस्क क्वेश्चन टू द पेंटेड. पेंटेड से आस्क करने की जरूरत नहीं है आपको कि क्या पेंट किया उसने. द बेबी स्लीप्स, व्हाट इज बेबी डूइंग, स्लीप्स. तो क्या स्लीप किया, नो आंसर वी विल फाउंड. ग्रो फास्ट, क्या ग्रो किया, क्रीपर ग्रोस मीन्स बड़े होते हैं क्रीपर. द पिजन फ्लू अवे, क्या फ्लू किया, कोई भी आंसर आपको नहीं मिल रहा. तो दीज आर इंट्रांसिटिव. सिंपली यू कैन से कि जब आप वर्ब से क्वेश्चन आस्क करो कि क्या किया, सो वो होगा ट्रांसिटिव वर्ब. और जिन पे आपको ये आंसर नहीं मिले कि क्या रन किया, क्या फ्लाई किया, क्या रेन किया, तो दीज आर इंट्रांसिटिव वर्ब्स. सो यू कैन सी आई प्लेड ऑल इवनिंग. सो आपने देखा आई प्लेड, मैंने क्या खेला, ऑल इवनिंग. ओके, तो ये अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट शो करने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज ट्रांसिटिव. ही गेव द बुकेट टू द टीचर, उसने क्या दिया, बुके दिया टीचर को. सो दिस इज ट्रांसिटिव. दे लाफ्ड एट द क्लोन, वो क्लोन पर लाफ्ट किए, तो क्या लाफ किया, नथिंग. सो दिस इज intransitive. Okay, so fill the exercise like this.